Hi everyone, welcome back to the learning field. So in this video, we are going to discuss that important tips, or you are trying to give you the important tips to avoid mistakes in your exam hall. You all know that the CSR NET exam is upcoming very near days. The exam starts from 25th of July, 26th of July and 27th of July, and today is 20th of July. So some mistakes definitely we do in our exam hall, especially for those 2 or 3 hours. Okay, and one more thing is that if you are not a CSR NET aspirant, if you are any other exam aspirant, then you can also watch these videos, because in this video I'll share you some tips and techniques that how can you avoid these types of mistakes in your any other exams. Okay, because something is common for all the exams. Okay, now the first thing first is uh, fixed your targeted area. Okay, fixed your target, such as questions, topics and marks. What is this? See, for the exams like CSR NET, okay, you have to answer a certain marks. Suppose this exam is of 200 marks, but you don't have to get 200 marks to qualify the exam. You just have to, suppose we have to get 120 marks or 100 plus marks for qualifying the exam. So we have to prepare such a way that we can achieve this 120 marks or 100 marks very easily. How can this possible? See, we are not going to give the 200 marks paper. So we are just preparing that 120 marks or 130 marks or 140 marks as very well. So first target these marks, that what you have to achieve to qualify the exams. This is very basic idea and very strong mental idea to qualify the exams like CSR NET, because this is a very huge exam and it has a deep impact. Okay, time is a very important factor for these exams, because there are 3 hours you have, and you have to answer total 200 marks questions for, if we say, for mathematical science, for life science, for physical science, I think it is of 200 marks. Now the next important thing is topic. See, the syllabus of these exams like CSR NET is very big syllabus. You have to secure very good marks that topic, then you must targeted that topics first thing first. सच एज फास्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि आप सभी ने जाते हो कि फास्ट कम फास्ट बेसिस जो सर्विस होता है ना, वैसे ही। ठीक है, जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता है एंड बहुत ही स्ट्रांग है उस टॉपिक को आप फास्ट, वो मतलब वो एग्जाम हॉल में जो उस टॉपिक्स का जो क्वेश्चन आता है उसको फास्ट टारगेट करो ऑब्वियसली। देन आता है क्वेश्चंस। देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम यू हैव टू अटेम्प्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. So topic is another thing and questions is another thing, because your stronger area, but the questions of these topics makes the examiners such a way that you are feeling that these types of questions may be or may not be solvable. So here you can feel a low confident in that case. But how can you overcome these low confident cases in that 3 hours time period? So for this case, देखो क्या करना है आपको, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सपोज आपको 30 to 40 क्वेश्चंस टोटल आंसर करना है। ठीक है, तो टॉपिक्स के अलावा भी ये 40 क्वेश्चंस आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सको, उसके लिए एक दिमाग में आपका मतलब प्लान बैठा लो एग्जाम से, मतलब पहले से ही। ठीक है, तो ये है। और एक थिंग नेक्स्ट जो है, मेंटेन द टाइम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन द टाइम फॉर ईच क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेंटेन द टाइम फॉर ईच क्वेश्चंस। सपोज यू हैव फॉर मैथ्स यू कैन से दैट 3 marks questions, 2 marks questions and 4.75 marks question, and you have to get 120 marks suppose for general है, तो 120 marks and you have time 180 minutes. So if we calculate per 1 marks, you record the minutes is 140. So you can say like 3/2. So 1.5 minutes. Okay, but you have to
make the questions for less than 1.5 minutes. Okay, for a single marks, for 1 marks you have maximum 1.5 minute time period. Okay, but no, this is no maximum 1.5 minute, but you have to answer for 1 marks. Calculate, suppose 1 minute, 1 marks for 1 minute, that means 2 marks questions, means you have to maximum give in these questions 2 minutes. Okay, for 1 marks you give 1 minute, and for 2 marks you give 2 minutes maximum to maximum, because you have to save 30 to 40 minutes, at least 30 minutes at least, for the end of the exam. Okay, so this is one case. Now maintain each questions for each time period, and for a 3 marks question you can give a 3 minute or 3.5 minutes or maximum 4 minutes, not more than that. This is very clear, you should very clear about this thing. Okay, now point number 3 is don't stuck any question, don't stuck in any question. This is also very important question or very important tips, because suppose you have read your favorite topic and you have to solve the topic, your favorite topic fastly in the exam, but when you calculate or when you going to solve or when you are solving the questions, you feel that not a very easy way that you can solve it. When you feel these types of thing, then you can't stuck on this question, just skip the question, just skip the question. Okay, this is also very important, because we have a very bad habit that if we read a topic very deeply, or suppose this topic algebra. Okay, suppose this topic algebra is very क्या बोलूँ मैं, जो है बहुत ही अच्छे से आता है मेरे को, ठीक है, ये अलजेब्रा, बट देयर इज सम क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस वैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं हो पा रहा है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, तो जस्ट डोंट स्टक ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चंस में 4 to 5 मिनट्स अटक जाओगे ना, एक चीज होगा कि वहां पे तो टाइम लॉस तो आपका होगा ही, दूसरा एक चीज होगा जो कि बहुत ही खतरनाक है एग्जाम हॉल में, वो है आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा। ठीक है, देखो आप जिस टॉपिक को सबसे अच्छे पढ़ के एग्जाम में जाओगे, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी मतलब डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में बैठा लेना कि जब आपका फेवरेट टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप स्किप करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट, चूज योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, चूज योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैथ्स में आपका प्योर अच्छे से आता है, या फिर आपका अप्लाइड आपसे आता है, या फिर अप्लाइड का कोई पार्ट आपको अच्छे से आता है। ठीक है, उस टॉपिक से आप टारगेट ले लेना कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतना ज़्यादा आपका एग्जाम, मतलब उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में, एग्जाम की पहले सॉल्व करके जाओ। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक्स को आपका मतलब क्वेश्चंस आना है, मतलब आते एग्जाम में, तो आप सोच रहे हैं कि उस टॉपिक्स को मेरे को करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स आपका स्ट्रांग है बट आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो। ठीक है, तो आप एग्जाम में एक बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगा दोगे, या फिर वो क्वेश्चन कोई भी एक थियोरी या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी गलती हम लोग करते हैं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको थोड़ा कम प्रैक्टिस करते। ये हमारा मतलब ये भी एक बैड हैबिट है, आप सोच सकते हो। ठीक है, क्यों देखोगे आप, जब जिस टॉपिक को आप रिवाइज करोगे, सपोज ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो ये तो मेरा हो जाएगा, तो पता पलट देते हैं हम, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बट वही हमारा बहुत ही एक अच्छा सा गलती है। ठीक है, क्योंकि जब आपका कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आता है तो जितना ज़्यादा कम टाइम में हो सके उतना ज़्यादा कम टाइम में आपको वहां से मार्क्स गेन करना है। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ दिमाग में मतलब अच्छे से सेट करके रखना है कि मेरे को मार्क्स गेन करना है कम से कम टाइम में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि है
आपका एग्जाम से पहले ही एक मेंटालिटी आपको सेट करके जाना है, ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छे से उसको दिमाग में बैठा के लेके जाओगे ना, उतना अच्छा आपका दिमाग वहां पर आपको सर्व करेगा, ठीक है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ कम्स टू अनदर पार्ट व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, three words. I write here three words. You can see. The first one is, the second one is, and the third one is, I think you all are relatable with these three words: panic, एंग्जाइटी और एंजाइटी और स्ट्रेस। देखो ये तीनों तो हर एक एस्पायरेंट्स के दिमाग में आएगा ही आएगा, और हर एक एस्पायरेंट्स का ये तीनों वर्ड्स आता है तो होगा ही, ठीक है। बट हाउ कैन वी डील विद दिस थ्री थिंग्स? ओके, तो देखो पैनिक बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एस्पायरेंट्स है, मतलब आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स हो, तो आपको पैनिक भी आएगा, एंजाइटी भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, एंड एग्जाम हॉल तक, मतलब एग्जाम जब खत्म नहीं होता है, ठीक है, ये तीनों चीज आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो देखो पैनिक कैसे मतलब नहीं करना है, मतलब पैनिक तो होता है, पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका पैनिक सिचुएशन ना बहुत ही बैडली इफेक्ट करते हैं। इस पैनिक की वजह से वो लोग ठीक से मतलब एग्जाम नहीं दे पाता है, क्योंकि पैनिक जब होता है ना, मेरा मतलब हमारा जो दिमाग है, मतलब जो ब्रेन है, पैनिक सिचुएशन में मेरे को जितना आता है उतना भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एक थिंग क्लियर है। देन एनजाइटी, देखो एनजाइटी भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक एग्जाम है। मैं मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि एनजाइटी आपको नहीं होगा, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो होगा ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक रहता है, क्योंकि एक बड़ा सा एग्जाम से। एंड हाउ टू डील विद दिस थ्री थिंग्स? देखो एक चीज ये है कि आप सोच लो, ये जो एग्जाम है ना, ये आपका खुद का है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आप पास हो या फिर फेल हो, वो आपका खुद का अचीवमेंट है, ठीक है। ये आप सोचो कि एक एग्जाम आप देके जा रहे हो, देखो इस एग्जाम की हॉल में ना कोई आपको मतलब हेल्प नहीं करेगा, बट कोई मतलब आपको जो देखो फादर मदर एंड फैमिली जो होता है, टीचर्स जो होता है, सभी के सभी सपोर्ट तो करेगा ही, बट एग्जाम्स के गेट के आगे तक, एग्जाम्स के गेट में बाद तक, वो जो 3 आवर्स एग्जाम्स का है और जो भी है दूसरा कोई एग्जाम के लिए, तो उस 3 आवर्स को आपको खुद को आपको ही संभालना होगा, ठीक है। ये एक माइंड सेट बना लो कि बहुत लोग होता है मतलब जिन लोगों का और या फिर स्टूडेंट्स का नार्व बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है नार्व, बट स्ट्रॉन्ग आपको बनाना कैसे है? देखो ये जो अचीवमेंट्स है, मतलब एग्जाम का रिजल्ट्स क्यों जो है, ये तीनों चीज होता है, इस तीनों चीज ना इससे कनेक्टेड है, रिजल्ट्स। तो जो कि है एग्जाम्स का, सपोज आप 2 मंथ्स बाद आएगा, ठीक है, एक चीज आप अच्छे से सोच लो कि ये रिजल्ट्स के लिए ही आपको पैनिक, एंजाइटी एंड स्ट्रेस होता है। देखो जो एग्जाम होता है, एग्जाम तो देखो एक जस्ट नॉर्मल तरीका का है, मतलब क्लास टेस्ट जैसा, या फिर आप मतलब होम में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मतलब कोई एक मॉक दे रहे हो, ऐसा कुछ, तो ये एक तो चीज है। बट आपको ये तीनों चीज क्यों आता है? इसके लिए, इस रिजल्ट के लिए, जो कि एग्जाम्स के 1 मंथ या फिर 2 मंथ बाद आना है। तो अच्छे से सुनो आप, देखो ये आप साइड में रख दो, ठीक है, बट एग्जाम्स इधर है, ठीक है, देखो आप एग्जाम्स तो इधर है एंड रिजल्ट तो उधर है। देखो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, आप मतलब मेरे बात कहूँ, आपका बात कहूँ, तो चीज़ एक ही है कि ये चीज़ जब आप कोई एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये तीनों चीज़ आपका रिजल्ट के लिए ही कनेक्टेड होता है कि रिजल्ट कैसा होगा, मैं क्वालिफाई करूँगा या फिर नहीं, ये चीज़ के लिए ही ये तीनों चीज़ आता है। तो आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जो कि 2 मंथ्स मतलब बाद आना है, तो क्यों आपको आज का दिन खराब करना है जो कि 2 मंथ्स बाद में होने वाला है? आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में एक चीज सोचो, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल थिंग है, इफेक्ट है कि आप आज का दिन के लिए ही सोचो
इसको आप हटा दो, ठीक है, आपका माइंड से इस चीज को हटा दो, तो आपका माइंड मतलब जो होगा देखा जाएगा, पास होना है तो होगा, फेल होना है तो वो भी होगा, ठीक है, वो नहीं होगा तो वो भी आपका अचीवमेंट है, होगा तो वो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी होगा मैं खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो फेल तो हमारा जीवन में आता ही है। एंड आप आज फेल हो गए तो काल फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चौथे बार फेल हो गए, पांचवी बार फेल हो गए, बट एक टाइम तो आएगा जब आप फेल नहीं होगे। तो सोचो उसके बारे में कि कैसे ये फेल एंड पास का जो थिंकिंग है, ये जो दो चीज है, इसके लिए ही आता है ये तीनों थिंग, पैनिक, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो ये रिजल्ट्स का आपको दिमाग से दूर हटाओ। आप मतलब 3-4 दिन जो है ना, ये 3-4 दिन आप एक चीज ही हर बार सोचो कि रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, रिजल्ट जो होना है तो वो तो होगा ही, जो है मेरे को ठीक से एग्जाम्स देना है, ठीक है। एंड रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको ये 3 आएगा ही। हाँ देखो, आप ये चीज मेरे से आर्गू कर सकते हो कि मतलब कोई एक चीज मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में तो दिमाग में चिंता आएगा ही आएगा। हाँ वो सही है, आना है एंड आना चाहिए, वो भी एक चीज है, आप मेरे से आर्गू कर सकते हो, बट उसको आपको दिमाग से हटा के रखना है, जो कि 2 मंथ बाद होने वाला है, ठीक है। आपको आज के बारे में सोचो, वो जो होना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ सोचो कि जो होगा तो होगा, देखा कोई एक इवेंट है जो कि 2 मंथ बाद होना है, कैस क्यों आज मैं उसके बारे में सोच के आज का दिन खराब करूंगा, ठीक है। ऐसे एक मेंटल कंडीशन और प्रिपरेशन आप ट्राई करो बिल्ड करने का, ठीक है। तो आई थिंक इन दैट केस यू कैन डील विद दिस थ्री थिंग, पैनिक, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो सोच में है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप कैसे ये तीनों चीज़ के साथ डील कर सकते हो। देखो रिजल्ट के बारे में मत सोचो अभी, मतलब आज जो होना है वो होना है, काल जो होना है वो तो होगा, काल के बारे में आप मत सोचो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो का मेन टॉपिक। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करके जाना, एंड हेल्पफुल है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, मतलब जिसका ये सब होता है उसके साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो, क्योंकि और 3 या 4 ही दिन है बीच में, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस करते रहो, यही बात बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो। एंड कोई मॉक आप दे रहे हो तो आप मॉक पेपर दो, एंड हर एक पेपर का हर एक दिन में ही जब मॉक दो उसका पेपर का आप एनालिसिस करते रहो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ईच ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कोई CSR नेट भी हो या फिर नहीं हो उसके मतलब नहीं, कोई बाद में देखा तो इसके लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड होप ऑल यू आर डूइंग वेल इन आवर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री कृष्णा।